کراچی سے خیبر تک میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ سیالکوٹ میں گھریلو ناچاکی پر باپ نے کلہاڑیوں کے وار کر کے بیٹی کو قتل کر دیا۔ حملے میں دوسری بیٹی بھی زخمی ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کو فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 29 ریلوے کراسنگز موت کا پیغام دینے لگے۔ 3 برسوں کے دوران 10 حادثات، 20 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ محکمانہ اقدامات کاغذی کارروائی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے بعد ڈسکہ میں بھی نامعلوم افراد 8 گدھوں کی کھالیں اتار کر فرار ہو گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس، پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام۔ ادھر رحیم یار خان میں محکمہ لائیو سٹاک کی ملی بھگت سے سلاٹر ہاؤس میں لاغر اور بیمار جانوروں کو ذبح کرنے کا انکشاف ہوا۔ مضر صحت گوشت مختلف علاقوں میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ چکوال میں تجاوزات کی بھرمار نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ مختلف علاقوں میں تجاوزات کے باعث گھنٹوں ٹریفک جیم، عوام کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ گجرانوالہ میں پنجاب حکومت کی گڈ گورننس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ واحد سرکاری اسپتال میں مریضوں کو اسٹریچر مل سکا نہ ہی بیڈ۔ ایمرجنسی وارڈ میں چارپائی پر طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے مختلف علاقوں میں 3 ماہ سے سوئی گیس غائب۔ طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین سراپا احتجاج۔ سکھر میں بجلی اور گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ نے سخت سردی میں شہریوں کا پارا ہائی کر دیا۔ خواتین اور بچوں نے برتن اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لاڑکانہ کے نواحی علاقے رتو ڈیرو میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، مشتعل مظاہرین کا ایس ڈی آفس کا گھیراؤ، توڑ پھوڑ، پولیس کے پہنچنے پر فرار ہو گئے۔ خیبر ایجنسی میں جاری پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جرگہ بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ شرکاء ایف سی آر کے خلاف نعرے لگاتے رہے، جرگہ ملتوی ہو گیا۔ خیبر پی کے میں صوبائی حکومت کا ایک اور کارنامہ، ڈی ایس کیو میں جونیئر ڈاکٹر کو ڈائریکٹر تعینات کر دیا۔ سینئرز کا احتجاج، کہتے ہیں میرٹ کو نظر انداز کیا گیا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ برفباری کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بجلی اور گیس کی بندش کے باعث عوام مشکلات کا شکار۔ ڈیرہ بھگٹی میں بچوں کو خسرے کی وبا سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ 10,000 بچوں کو وبا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صبح پنجاب سے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے سیالکوٹ سے، جہاں پر گھریلو ناچاکی پر باپ نے کلہاڑیوں کے وار کر کے بیٹی کو قتل کر دیا۔ حملے میں دوسری بیٹی زخمی ہو گئی۔ پولیس نے ملزم کو فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ سیالکوٹ میں یہ واقعہ پیش آیا گھریلو ناچاکی کا، جس پر باپ نے کلہاڑیوں کے وار کر کے بیٹی کو قتل کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز عمران سیال سے۔ عمران، کیا تفصیلات ہیں اس واقعے سے متعلق؟
جی بالکل، تھانہ صدر پسرور کے نواحی علاقہ ٹھٹھا ملکی کے رہائشی سنگ باب محمد نصیر نے گھریلو نچاکی پر اپنی 2 حقیقی بیٹیوں پر کلہاڑی کے در پہ وار کیے، جس سے 17 سالہ نشین جاں بحق ہو گئی، جبکہ 16 سالہ جو سحر ہے شدید زخمی ہو گئی ہے۔ زخمی سحر کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کی حالت خطرے میں بتائی جا رہی ہے۔ ملزم محمد نصیر کی یہ دونوں بیٹیاں اس کی پہلی بیوی سے تھی۔ پولیس نے ملزم نصیر کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اس میں گھریلو نچاکی کی وجہ سے اس کے والد نے اپنی دونوں بیٹیوں پہ حملہ کیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا عمران سیان اپڈیٹس کے لیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 29 ریلوے کراسنگز موت کا پیغام باندھنے لگے۔ 3 برسوں کے دوران 10 حادثات میں 20 افراد لقمہ اجل بن گئے، لیکن محکمانہ اقدامات کاغذی کارروائی سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ضلع کی ریونیو حدود میں واقع 29 کھلے ریلوے کراسنگ حادثات کا اسباب بننے لگے۔ 3 سالوں کے دوران 10 مختلف حادثات میں 20 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کی ریونیو حدود میں صرف 13 پھاٹک منظور شدہ ہیں، جہاں ریلوے ملازمین تعینات ہیں، جبکہ باقی تمام کراسنگ غیر قانونی ہیں۔ گزشتہ روز گوجرا کے قریب ہونے والا حادثہ بھی ریلوے کراسنگ پر پھاٹک نہ ہونے کے باعث پیش آیا، جس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ٹرین کے آئے روز ہونے والے سنگین حادثات کے باوجود ریلوے حکام نے آج تک نہ تو کوئی غیر قانونی ریلوے کراسنگ ختم کیے اور نہ ہی ان پر پھاٹک لگانے کی زحمت کی۔ شہر کا مین روڈ ہے تو پھاٹک جو ہے یہ بہت دیر سے خراب ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اس جگہ تے 2-3 پکوئے بڑے زیادہ بچے جوان کے بہت فوت ہویا، کھوتڑی نقصان ہویا۔ ایتھے اسی چاہتے ہیں کہ پھاٹک لگنا ضروری ہے۔ ہر حادثے کے بعد ریلوے انتظامیہ کھلے پھاٹکوں کی تفصیلات اعلیٰ حکام کو بھجوا کر فرض پورا کر دیتی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کھلے ریلوے کراسنگ پر پھاٹکوں کی تنصیب کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ انسانی زندگیوں کے ضیاع سے بچا جا سکے۔ گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے بعد ڈسکا میں بھی نامعلوم افراد 8 گدھوں کی کھالیں اتار کر فرار ہو گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گدھوں کو ذبح کر کے ان کی کھالیں اتارنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈسکا کے نواحی گاؤں گلوٹیا میں نامعلوم افراد 8 گدھے چوری کر کے ان کی کھالیں اتار کر غائب ہو گئے اور ان گدھوں کا گوشت قریبی کھیتوں میں پھینک دیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ کئی روز سے جاری ہے، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ رحیم یار خان میں محکمہ لائف سٹاک کی ملی بھگت سے سلاٹر ہاؤس میں لاغر اور بیمار جانوروں کو ذبح کرنے کا انکشاف ہوا، جسے مختلف علاقوں میں فروخت بھی کیا جا رہا ہے۔ روزانہ درجنوں بیمار اور نیم مردہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد مارکیٹ میں کھلے عام فروخت کیا جاتا ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں ذبح ہونے والے جانوروں کی تندرستی یا صحت کو چیک کرنے کا کوئی انتظام موجود نہیں۔ محکمہ لائف سٹاک کا عملہ مبینہ طور پر منتھلیاں لے کر سلاٹر ہاؤس سے غائب ہے، جبکہ لاغر اور بیمار جانوروں کا گوشت کھانے سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکومتی پابندی کے باوجود حاصل پور میں ہیڈ اسلام کے پاؤنڈ ایریا میں مچھلی کا غیر قانونی شکار جاری ہے۔ محکمہ کینال ویو عملہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ حاصل پور میں ہیڈ اسلام کے پاؤنڈ ایریا میں ٹھیکیدار اور محکمہ کینال ویو عملے کی ملی بھگت سے غیر قانونی مچھلی کا شکار جاری ہے۔ ہیڈ اسلام پر سیکیورٹی خدشات بھی جنم لینے لگے۔ ہیڈ اسلام کے ایکسین اور سب انجینئر دفتر میں بیٹھے شکاریوں کا تماشا دیکھتے رہے، جبکہ حکومت پنجاب کو ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر لاکھوں روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے ہیڈ اسلام کے دونوں اطراف پاؤنڈ ایریا میں 1.5 کلومیٹر تک شکار کرنے پر پابندی ہے۔ خبر آپ کو دیں گے چکوال سے، جہاں پر تجاوزات کی بھرمار نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ مختلف علاقوں میں تجاوزات کے باعث گھنٹوں ٹریفک جیم رہتا ہے اور عوام کا گزرنا بھی محال ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ وقت نیوز فیصل عوام سے۔ فیصل، آگاہ کیجیے گا، تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، آپریشن یہاں پہ چکوال میں جیلم روڈ، تلگنگ روڈ، یہاں پہ اس قدر تجاوزات ہے اور دکانوں کے آگے لوگوں نے تھڑے بنا لیے ہیں، پارکنگ ہے تو اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جو سڑکوں کے ارد گرد جو پارکنگ ہے اس کو کوئی گورنمنٹ آ کے دیکھے کہ یہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بازار کے اندر آپ دیکھیں تو چکوال کا جو چھپڑ بازار چکوال ہے، وہاں پہ اس وقت 3 رو ہیں ٹھیوں کی، جو یہ جو ٹھیلے لگتے ہیں، پہلے دکاندار ہیں انہوں نے آگے
ठेले लगाए हुए हैं, उस ठेलों के आगे फिर अब ठेले लगना शुरू हो गए। आए दिन वहां से खवातीन के साथ बदतमीजी के वाकयात जो है वो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पे एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन नहीं लिया जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका फैसल अमान अपडेट्स के लिए। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय खोखले दावों और नारों की सियासत कर रही है। गरीब और मजबूर तबका हुकूमती रिलीफ के पैकेज का इंतजार करते करते अब मायूस होने लगा है। हुकूमती मुद्दत के 4 साल मुकम्मल होने को है, मगर गुर्बत और महंगाई ने वतन अजीज में बसने वाले लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा। मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आने से कबल अवाम को बहुत से सुहाने ख्वाब दिखाए थे और इंतखाबी वादों में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में वाजिया कमी करने की बहुत सी बातें की थी, मगर अवाम के हिस्से में सिवाय इंतजार के कुछ भी नहीं आया। मेरे ख्याल में तो गरीब आदमी एक आलू लेगा तो वो भी नहीं खा सकता। आम सब्जी का रेट बहुत ज्यादा है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, इजाफा हो रहा है। महंगाई तो महंगाई है, बढ़ती जा रही है। पहले जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी अब वो 20 रुपए की है। कोई भी आइटम ले लो, फ्रूट ले लो, सब्जी ले लो, करियाना ले लो। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़श्ता सालों की तरह रवा साल भी कोई तब्दीली ना ला सका। महंगाई है कि बस बढ़ती ही जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक वतन अजीज की आधी से जायद आबादी को 2 वक्त पेट भर कर खाने के वसाइल भी मुयस्सर नहीं, जबकि अफराते ज़र की शरह में हर आने वाले दिन में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के सताए हुए अवाम को ये समझ नहीं आ रही कि वो जाए तो जाए कहाँ। गुजरांवाला में पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस के दावे धरे के धरे रह गए। वाहिद सरकारी अस्पताल में मरीजा को स्ट्रेचर नहीं मिल सका। इमरजेंसी वार्ड में चारपाई पर तिबी इमदाद दी जा रही है। नवाही इलाके जब्बोके की रिहायशी 60 साला खातून बशीरा बीबी को पेट में तकलीफ के बाइस तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां इंतजामिया की जानिब से खातून को स्ट्रेचर फराहम किया गया और न ही बेड मुयस्सर हुआ, जिसके बाइस बशीरा बीबी का इलाज इमरजेंसी वार्ड में चारपाई पर ही किया जाता रहा। टेस्ट करवाने के लिए वुरसा खातून की चारपाई उठाकर एक से दूसरे वार्ड में घूमते रहे। लैया में MM रोड पर वाक़े ज़ेरे तामीर डिविजनल पब्लिक स्कूल गुज़िश्ता 3 सालों से मुकम्मल नहीं हो सका। मकामी तुलबा और तालिबात तालीम के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। 128 कनाल रकबे पर मुहित डिविजनल पब्लिक स्कूल, जिसका इफ्तिताह अप्रैल 2014 में किया गया था, 61 मिलियन रुपए से जायद अखराजात आने के बावजूद स्कूल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। इलाके के अवाम जदीद तालीम से महरूम हैं। आगे बढ़ते हुए आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे डेरा गाजी खान से, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज बन गई हैं। इन मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह से गैस की सप्लाई बंद है, जिसके बाइस अमूरे खानादारी में मुश्किलात दरपेश हैं। सुई गैस की बंदिश के खिलाफ डेरा गाजी खान में खवातीन सरापा एहतजाज है। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त मोहम्मद खोसा से। बख्त मोहम्मद खोसा, आगाह कीजिएगा, कितना वक्त हो गया है लोड शेडिंग को, क्या कहते हैं इंतजामिया? हाँ जी, डेरा गाजी खान शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ख्वातीन ने एहतजाज किया और इस मौका पर जायद ब्लॉक की दर्जनों ख्वातीन ने गर्ल्स कॉलेज रोड को बंद करके काफी देर तक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हाथों में चूल्हे और बैनर उठा रखे थे। एहतजाजियों का कहना था कि जायद ब्लॉक में गुज़श्ता 3 माह से गैस की लोड शेडिंग है। मजबूरन वो तंग आकर उन्होंने रोड पर निकल आई हैं, जबकि गैस की बंदिश के बावजूद भी हर माह बाकायदा बिल भी भेज दिए जाते हैं। इस दौरान एहतजाजियों ने मुतलका महकमा समेत हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और दूसरी तरफ जो है महकमा सुई गैस वालों का कहना है कि सर्दियों में जो है गैस की लोड शेडिंग ये रूटीन का हिस्सा है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोड शेडिंग के हवाले से जो है काम किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त खोसा अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेखुपुरा में गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा ने प्रिंसिपल के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और कई घंटे ट्रैफिक को ब्लॉक रखा। शेखुपुरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ के सैकड़ों तलबा ने कॉलेज प्रिंसिपल के नारवा सलूक और इजाफी जुर्माने किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा लाहौर रोड से मार्च करते हुए GT रोड पहुंचे, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से छुट्टियों की मद में फी तालिब इल्म
2 से 3,000 रुपए जुर्माना किया जाता है, जबकि सरकारी तौर पर जुर्माना 5 से 10 रुपए है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया की हर नेमत से मालामाल है। हमारे हुक्मरानों ने दोनों हाथों से लूटकर अपनी जायदादें बना ली, कौमी सरमाया बाहर जमा कर रखा है। अवामी राज पार्टी के सरबराह MNA सरदार जमशेद खान दस्ती ने अलीपुर के इलाके खैरपुर सादात में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उनका कहना था कि हमारे मजदूर के लिए तालीम और नौकरियों के दरवाजे बंद हैं, जबकि जागीरदारों के लिए मनपसंद नौकरियां हर वक्त दस्तयाब रहती हैं। जागीरदारों ने अवाम को गुलाम बना रखा है। गरीब अवाम जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ मूजी अमराज जन्म ले रहे हैं। वजीर आला सिर्फ फर्जी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। खानका डोगरा में बल्दियाती नुमाइंदों और यूथ काउंसिल के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम भी भरपूर शिरकत करती नजर आई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि हमारी आबादी का 60% यूथ पर मुश्तमिल है। वजीर आला नौजवानों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल देने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब यूथ काउंसिल के ज़रिए तमाम जिला, तहसील और टाउन कमेटी की सतह पर यूथ काउंसिल बनाई जा रही है। खबर शामिल करेंगे अटक से, जहां पर सड़क के इफ्तिताह से कबल ही हादसे ने रंग में भंग डाल दिया। रुकने असम्बली मौके की नजाकत को भांपते हुए इफ्तिताह किए बगैर ही चलते बने। अटक की तहसील हसन अब्दाल के इलाके झारी कस में मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक शावेज खान सड़क के इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो लोगों ने फूलों के हार गले में डालकर इस्तकबाल किया। MPA ने धुआंधार खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने इलेक्शन के दौरान आवाम से किए सब वादे पूरे कर दिए। इस 18 किलोमीटर रोड पर 18 करोड़ रुपए की लागत आएगी और चंद देहातियों को आवाम की सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। खिताब के बाद मज़कूरा रोड के काम के आगाज के लिए शावेज खान क्रेन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गलत गियर लगा बैठे, जिससे क्रेन का भारी भरकम पंजा दुकान में घुस गया, जिससे दुकान के शीशे टूट गए। शीशा लगने से कई अफराद जख्मी भी हो गए। MPA साहब मौके की नजाकत को समझते हुए दुकानदार से इजहार हमदर्दी करके चलते बने। पाकपतन में जिला काउंसिल के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल पाकपतन मोहम्मद असलम का कहना था कि पंजाब के अवाम ने हमें मुंतखब किया है, इसलिए कोशिश होगी कि जितना मुमकिन हो सके वसाइल में रहकर अवामी खिदमत करें। उनका कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में पाकपतन वो वाहिद ज़िला है जहां अवाम ने तहरीक इंसाफ को खिदमत का मौका दिया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के अरकान भी शरीक हुए। मियांवाली में रेस्क्यू ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा गया। इलाका कमरमशानी में रेस्क्यू ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदे और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर हादिसात और नागहानी आफात पर रेस्क्यू की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि रेस्क्यू इदारे का क़याम जिस मकसद के लिए अमल में लाया गया था वो इस मकसद में पूरी तरह कामयाब है और इसकी सर्विस बेहतरीन और फौरी है। आवाम का एतमाद भी इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। गुजरांवाला में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां 50 दुल्हनें पियादे सुधार गई। दुल्हनों को फी कस 1,25,000 रुपए मालियत का सामान जहेज में दिया गया। कला दीदार सिंह के मकामी मैरिज हॉल में 50 मुस्तहिक जोड़ों के इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। बारातियों का बैंड बाजे से इस्तकबाल किया गया। निकाह के बाद बारातियों की पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़ो की गई। मुंतज़मीन की जानिब से दुल्हनों को फीकस 1,50,000 रुपए मालियत का सामान जहेज भी दिया गया, जिसमें जरूरत जिंदगी की तमाम अशिया शामिल थी। इस मौके पर शादी के बंधन में बंधने वाले 9 ब्याहता जोड़ों और उनके अहले खाना का कहना था कि गुर्बत की चक्की में पिसने वालों के लिए ऐसी तकरीबात किसी नेमत से कम नहीं है। मुंतज़मीन का कहना था कि वो हर साल मुस्तहिक जोड़ों के लिए शादी की तकरीब का इनेकाद करते हैं। उन्होंने कहा कि 12 इज्तिमाई शादियों से शुरू होने वाला सिलसिला 50 इज्तिमाई
ब्याह शादियों तक पहुंच चुका है। आइंदा साल इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। प्रेस क्लब हादिया में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वज़राए ममलिकत और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क को इस वक्त लातादाद मसाइल दरपेश हैं, जिनके हल के लिए मौसर हिकमत अमली की अशद ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि आने वाला साल आम इंतखाबात का साल है। इस सिलसिले में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि तब्दीली हमेशा वोट के जरिए आती है। सिर्फ उसी को वोट दिया जाए जो वोट के काबिल हो। तकरीब के इख्तिताम पर प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान ने हलफ भी उठाया। मुल्तान में तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम खवातीन की दौड़ के मुकाबले हुए। मुनासिब ट्रैक न होने पर मुतादिद खवातीन जख्मी भी हो गईं। तालीमी बोर्ड मुल्तान में मकामी कॉलेज के ज़ेरे तमाम होने वाले स्पोर्ट्स गाला के दौरान 500 मीटर दौड़ के मुकाबले हुए। मुनासिब ट्रैक न होने की वजह से मुतादिद खिलाड़ी गिरकर जख्मी हो गईं। तालीमी बोर्ड ग्राउंड में होने वाले स्पोर्ट्स गाला में तिबी सहूलियात न होने की वजह से जख्मी खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने बोर्ड इंतजामिया से शदीद एहतजाज किया। ताहम वहां मौजूद फर्स्ट एड के अमले ने चंद तालिबात को तिबी इमदाद फराहम की। और अब कुछ बात करेंगे सर्द मौसम के हवाले से। सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली खाने का लुत्फ ही अलग है। चटपटे मसालों से तैयार तली हुई मछली की खुशबू शहरियों को दुकानों तक खींच लाती है। सर्द मौसम की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए सियालकोट के रिहायशी अहले खाना और दोस्तों के हमरा फ्राई फिश की दुकानों का रुख करने लगे। शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर लोगों का जमे गफीर दिखाई दे रहा है। दुकानों की भी चांदी हो गई। हवाले से मछली के शौकीन अफराद का कहना है कि तली हुई मछली जायकादार होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी इंतहाई मुफीद है, जबकि सर्दियों के मौसम में लुत्फ वाला हो जाता है। सर्दी काफी है तो फिश का मौसम है और फ़िश की बहुत अफादियत है, और सर्दियों में मेरा ख्याल है फ़िश जो है बेहतरीन ग़िज़ा है। दूसरी जानिब दुकानदार का कहना है कि उनके हाथ की तली हुई मछली का जायका गाहकों को खींच लाता है। रोहू, फिंगर फिश और बाम मछली शहरी शौक से खाते हैं। मौसम की तब्दीली के साथ लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मछली खाने के लिए आ रही है। हमारे हाथों की बनी हुई मछली लोगों गाहकों को हमारी तरफ खींच लाती है। लोग रहू, बाम, सींग, सोल जो है वो ज्यादा शौक से खाते हैं। सर्द मौसम में मछली खाने के शौकीन अफराद शाम होते ही दुकानों का रुख करते हैं। ये बाकायदा एक सौगात की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जिसके लिए खुसूसी तैयारी की जाती है। और अब खबरें होंगी आजाद कश्मीर से। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। मीरपुर आजाद कश्मीर में साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद के घर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। घर में मौजूद उनकी बहू और पोते को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे दानिश कुयूम से। दानिश, बताइएगा रेस्क्यू हुकाम का क्या कहना है? आज आग लगने की वजूहात मालूम हो सकी हैं? जी, साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मीरपुर आजाद कश्मीर के अनवाही इलाके खड़ी शरीफ में वाक़या रिहाइशगाह में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग बेसमेंट में लगी, जिसने बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे कीमती फर्नीचर और घर में मौजूद दीगर अशिया जल गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक घर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बहू और पोता बिल्डिंग में थे। आग लगने पर वो बाहिफाजत बिल्डिंग से मुंतकिल हो गए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका दानिश कुयूम अपडेट्स के लिए। और नाज़रीन, मौसम तो सर्द हो लेकिन कश्मीरी चाय ना हो, ये मुमकिन नहीं। सर्दियां शुरू होते ही मौसम सरमा की सौगात कश्मीरी चाय का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और पिस्ता बादाम के साथ साथ सब्ज इलायची भी इस्तेमाल होती है। मौसम सर्द हो और कश्मीरी चाय ना हो, ये कैसे मुमकिन है? सर्दी शुरू होते ही मौसम सरमा की सौगात कश्मीरी चाय का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और पिस्ता बादाम के साथ साथ सब्ज इलायची और दीगर अशिया भी इस्तेमाल होती हैं। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर लगे स्टॉल्स पर अवाम का शाम होते ही खासन रश दिखाई देता है। अवाम का कहना है कि कश्मीरी चाय को इनके हाथ सौगात की हैसियत हासिल है और सर्द मौसम में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। जिस्म को गर्म रखने के लिए कश्मीरी चाय का को एक मुनफरिद अहमियत हासिल है और कश्मीरी चाय घरों में और होटलों में कसरत से इस्तेमाल की जाती है।
कम निर्ख पर फरोख्त होने वाली चाय अपनी मिसाल आप है। इलाका मकीनों के मुताबिक ये चाय सिर्फ मौसम सरमा में ही नहीं बल्कि सदाबहार इस्तेमाल होती है, लेकिन घरों से ज्यादा दुकानों पर इसके इस्तेमाल को तरजीह दी जाती है। और अब बात करेंगे कोटली आजाद कश्मीर की, जहां सर्दियों की शामों में जंगल किनारे मेले का समा है। रिवायती खानों के साथ रक्स करके सयाह और मकामी अफराद इस हसीन मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये मनाजिर हैं जन्नत नजीर वादी कश्मीर के, जहां हर रोज सूरज की किरणें फूटते ही हसीन मनाजिर दावते नजारा देते हैं। बर्फबारी और सर्द मौसम के बायस मौसम और मनाजिर दिलफरेब होते हैं। सर्द मौसम में भी यहाँ के मकीन और खुसूसन मुल्क भर से आने वाले सयाह अपने अंदाज से लुत्फानंदोज होते हैं। कोटली आजाद कश्मीर के जंगलात, जहाँ शाम होते ही आग जलाकर मजे मजे के पकवान तैयार किए जाते हैं। सब मिल बैठकर खाते हैं और रिवायती रक्स करके खूब महजूज होते हैं। सयाहों का कहना है कि मौसम सर्दी का हो या फिर बहार या खज़ां का, मौसम से अपने तरीके से लुत्फ अंदोज होते हैं। उनका कहना था कि सारा साल यहाँ मेले का समा होता है, क्योंकि कुदरती नज़ारे शहर की बेहंगम फिजा में नहीं बल्कि यहाँ दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब सयाहों की आमद के पेश नजर जंगल में मंगल हो चुका है, दुकानें सज चुकी हैं, खेमे भी लग गए हैं और जिले इंतजामिया की जानिब से आने वालों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इलाका वकीलों के मुताबिक जनवरी के आखिर से लेकर फरवरी के वस्त तक। ब्रेकिंग न्यूज है सक्खर से, जहां पर बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन और बच्चों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है और इन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बर्तन भी उठा रखे थे। सक्खर में भी बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और खवातीन और बच्चे एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे मुबीन खान से। जी मुबीन, आगाह कीजिए। जी, गैस की लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है सर्दियों के आते ही। यहाँ पे जो है पुराने सक्खर और क्रीक एरिया के अंदर जो है यहाँ पे जो खवातीन थी उन्होंने जो है अपने बर्तन पांडे जो है वो सारे लेके आज सक्खर प्रेस क्लब पहुंच गए। उनका एहतजाज था इस मौके पर कि सुई गैस की जानिब से जो है गैस की बंदिश बिला जवाब की जा रही है, जिसकी वजह से उनको सुबह नाश्ते में और दोपहर के औकात में जो है घर में आने वाले अफराद के लिए खाने बनाने में दरपेश मुश्किलात पेश आ रही है। इस मौके पर इन्होंने जो है बर्तनों को जोर जोर से बजाकर जो है सुई गैस से इंतजामिया के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी की और कहा कि फौरी तौर पे हमारी घर की जो गैसें हैं वो बहाल की जाए। जी शुक्रिया आपका, मुबीन खान सक्खर से अपडेट कर रहे थे। सक्खर के बाद रुख करें लाड़काना का, जहां के नवाही इलाके रत्तोडेरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर होकर रह गया। रत्तोडेरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का पारा हाई कर दिया। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। सरापा एहतजाज शहरियों ने एसडी ऑफिस का घेराव किया और नारेबाजी की। इस दौरान मुश्तिल मुजाहिरीन ने दफ्तर में घुसकर खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले और हंगामा आराई की। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, ताहिम मुजाहिरीन तोड़ फोड़ के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दादू में रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों ने तेल कंपनियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तेल और गैस निकालने वाली कंपनियों में रोजाना की उजरत पर काम करने वाले मजदूरों ने मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली और दादू प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतालिबात दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि कंपनियां गुज़िश्ता 3 बरसों से खरबों रुपए का तेल और गैस बरामद कर रही हैं, मगर मुलाजिमीन को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालिबात के हक में एहतजाज करने पर कंपनी की इंतजामिया की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध समेत दीगर आला हुक्काम से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मकामी अफराद को बुनियादी सहूलतें और रोजगार फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बाइस लाड़काना की मारूफ शाहरा
एम्पायर रोड तालाब का मंजर पेश कर रही है। लाड़काना के मशहूर एम्पायर रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि नकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने की असल वजह यूनियन काउंसिल के मुंतखब चेयरमैन की जानिब से अपने इलाके से गुजरने वाले सीवरेज की नालियों को बोरियां डलवाकर बंद करवाना है। दूसरी जानिब लाड़काना के मेयर ने बोरियां डालकर सीवरेज की पाइपलाइन बंद करने की खबरों की तरदीद कर दी। उनका कहना है कि नेस्कॉस की नहली की वजह से नकासी आब मुतासिर हुआ। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाड़काना में पीपल्स पार्टी की पुरानी कारकुन माई पठानी ने पार्टी की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाज किया। लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुरानी कारकुन माई पठानी ने पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। माई पठानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत ने उन्हें नजरअंदाज किया। उसका कहना था कि वो पीपल्स पार्टी की पुरानी कारकुन हैं। उनको बेनज़ीर भुट्टो ने पार्टी में खिदमात की इवज़ अवार्ड से नवाजा था। उसका मजीद कहना था कि उनके बेटे को महकमा ज़राअत में नौकरी दी गई मगर बाद में उसे फारिग कर दिया गया। माई पठानी ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि उसके बेटे को फौरी नौकरी पर बहाल किया जाए। लाड़काना में नेस्कॉस के मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। लाड़काना नेस्कॉस के दफ्तर के बाहर सैकड़ों मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने और जबरी तौर पर मुलाजमों की बरतरफी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे भी दर्ज थे। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बेहंगम ट्रैफिक कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं। मुख्तलिफ इलाकों जिनमें हैदर चौक, गाड़ी खाता, स्टेशन रोड, नया पुल, फकीर कापड़, हीराबाद समेत शहर भर में जगह जगह ट्रैफिक जैम रहने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहर भर में बेहंगम ट्रैफिक ने शहरियों और कारोबारी अफराद का जीना महाल कर दिया, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक जैम के मसले पर काबू पाने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए जा रहे। ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की बजाय मोबाइल फ़ोन पर बात करते दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि शहर भर में ट्रैफिक जैम रहना रोज़ का मामूल है, जिसकी वजह से मरीजों, स्कूल जाने वाले तालिबे इल्मों को सख्त परेशानी का सामना है। उन्होंने पुलिस के आला अफसरान से मुतालबा किया कि शहर भर में जारी ट्रैफिक जैम के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पर दिया जाए ताकि शहर में ट्रैफिक जैम के मसले पर काबू पाया जा सके। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मीर नादिर अली अबड़ो ने सदर कैंट के इलाके में वाक़े वक्त न्यूज़ हैदराबाद के ब्यूरो ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने वक्त न्यूज़ हैदराबाद की टीम से मुलाकात की। दौरे के मौके पर वक्त न्यूज़ के नुमाइंदों ने डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध को अजरक का तोहफा पेश किया। इस मौके पर मीर नादिर अली अबड़ो का कहना था कि वक्त न्यूज़ हैदराबाद की टीम शहरियों के मसाइल के साथ साथ करप्शन के खिलाफ भी अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ हमारा भरपूर ताउन रहता है, क्योंकि मीडिया की खबरों और दीगर ज़राए से मालूम होने वाली रिपोर्ट के पेश नज़र भी वो कार्रवाई अमल में लाते हैं। उनका मजीद कहना था कि वक्त न्यूज़ की टीम आइंदा भी करप्शन करने वाले अनासिर को बेनकाब करते हुए एंटी करप्शन के साथ भरपूर ताउन करेगी। मुल्क भर की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी बेरोजगार अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 1100 भर्तियों के लिए हज़ारों उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म जमा करवा दिए। बढ़ती हुई बेरोजगारी का अंदाज़ा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नायब कासिद के लिए हज़ारों बेरोजगार ग्रेजुएट और मास्टर्स के तलबा और तालिबात ने फॉर्म जमा करवा दिए। इतनी बड़ी तादाद में फॉर्म जमा होने के बायस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि हज़ारों फॉर्म्स की कंप्यूटर्स में एंट्री के लिए दिन रात काम करना पड़ रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बावजूद रात के औकात में जिम्मेदारियां सरअंजाम देना पड़ती हैं। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से।
खैबर एजेंसी में जारी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जिरगा बदनज़मी का शिकार हो गया। अवाम FCR के खिलाफ नारे लगाते रहे। खैबर एजेंसी के तहसील जमरूद में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जिरगा का इंतकाद किया गया, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कबायली अमायदीन समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तकरीर के दौरान अवाम ने फाटा रिफॉर्म्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इसके खात्मे का मुतालबा किया। तकरीब के मुंतज़मीन की मुदाखलत के बावजूद नारेबाजी जारी रही, जिसके नतीजे में तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। बाद अज़ां हालात की संगीनी को देखते हुए तकरीब मुलतवी कर दी गई। डेरा इस्माइल खान में डॉक्टर्स ने DHQ के नए डायरेक्टर को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि सिफारिशी तैनाती की गई, फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और कारनामा सामने आ गया है। इंसाफ के दावेदारों ने डेरा इस्माइल खान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल में साबिक MS डॉक्टर करीम शाह को जूनियर होने के बावजूद डायरेक्टर बना दिया। सीनियर डॉक्टर्स और अमला हैरान है। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक DHO डॉक्टर शाहजहां बलोच और साबिक MS डॉक्टर आशिक सलीम ने दावा किया कि नए तैनात होने वाले MS जूनियर हैं और इस ओहदे के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते, जबकि सीनियर्स को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि सूबाई वजीर माल की ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करने के बजाय मेरिट पर तैनाती की जाए। उन्होंने साबिक MS को फिलफोर डायरेक्टर के ओहदे से मुअत्तल होने का भी मुतालबा कर दिया। और अब खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। बिजली और गैस की बंदिश के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। नौशकी में गुज़िश्ता शाम 5 बजे शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल वक्फे से जारी है, जबकि चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, तोबा, चकजई समेत दीगर मुसाफाती इलाकों में तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ मूसलाधार बारिश हुई। उधर हरनाई और ज़ियारत में बर्फबारी का दूसरा सिलसिला शुरू हो गया है, जहां शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए। बिजली की बंदिश और गैस का प्रेशर कम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डेरा भुगटी में बच्चों को खसरे की वबा से बचाने के लिए हिफाजती टीकों की मुहिम शुरू हो गई है। 10,000 बच्चों को खसरे की वबा से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। डेरा भुगटी में हर साल खसरे के बायस दर्जनों बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हर साल की तरह इस साल भी खसरे की वबा के बायस बच्चों की हलाकत की खबरें जब मीडिया पर आईं तो डिप्टी कमिश्नर डेरा भुगटी ने इजलास तलब करके हिफाजती टीकों की मुहिम चलाने के अहकाम जारी कर दिए, जिसके तहत महकमा हेल्थ ने खसरे से बचाव की मुहिम का आगाज कर दिया और इस सिलसिले में चेयरमैन टाउन कमेटी नवाबजादा गहराम भुगटी की निगरानी में हिफाजती टीकों का कैंप कायम कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक 10,000 बच्चों को खसरे से बचाव के टीके लगाए जाएंगे ताकि मजीद बच्चे इस मूजी मर्द से बच सकें। शहरियों ने इस अमल को खुशाइंद करार दिया है। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।